Hello students, hope you all are doing absolutely fine. And in this session, we will learn about the chapter electricity and we will do it in detail. Today, in today's session of this chapter, we will learn some basic things that would be useful in this chapter for the class 10 only. Okay? So, this is the chapter of physics for class 10 and the first chapter for the term 1, that is electricity. So what do you mean by electricity? We can say one of the most important part or essential part of life in today's world is electricity, right? So it is a controllable and convenient form of energy, we can say, and it is being used in almost every sector of modern society, right? Like households, commercial, transport, industry, etc. And why it is used? It is used to make the life faster and easier, or we can say it is used to make the life comfortable and easy. And we depend on the electricity for almost all activities for day-to-day life. In our day-to-day life, we can say, like it is used to glow bulbs, tubes. It is also used to charge your mobile phones, your laptops. It is also used to heat electric iron, to heat water, to operate refrigerators and air conditioners, to run electric trains, है ना, electric bells, electric आजकल तो जैसे electric cars are also there. ठीक है, so lots of uses are there, and by using it our life is becoming more comfortable and easy and faster. So how we will define electricity? So we will define electricity like this, that it is a source of energy, is a source of energy that has made our life comfortable, faster and easier. This is what we called as electricity. So in order to understand the concept of electricity better, we must know about the electric charge. इस चैप्टर को समझने के लिए we have to know some basic things about this chapter, and first one is electric charge. How will we define electric charge? Electric charge को कैसे डिफाइन करेंगे? We can say that it is a physical quantity. हमें पता है, जैसे हमने केमिस्ट्री में किया हुआ है, कि चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, है ना. When atom gains electrons, it will become negatively charged. When atom loses electron, it will become positively charged. So we can say that a charge is a physical quantity which is defined by excess or a deficiency of electrons on a body, है ना. अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं किसी बॉडी के पास, तो उसके पास चार्ज आएगा नेगेटिव. इफ़ अ बॉडी हैव लेस इलेक्ट्रॉन्स एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, देन इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, है ना. एंड बाय गेनिंग एनर्जी इट विल लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एंड चार्ज इज ऑलवेज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. क्लियर? सो चार्ज कैन बी डिफाइंड एज a physical quantity which is defined by excess or deficiency of electrons on a body, right? It is electric charge.
Or we can also define it like this, because some books on your level, on the 10th level, can also define the charge as it is a physical property of a matter or a substance. किसी भी substance या matter की एक physical property है with which causes it, जिसकी वजह से उसको to experience a force when placed near other matter or substance, जिसकी वजह से उस मैटर को जिसके ऊपर चार्ज है उसको कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस होगी, चाहे वो फोर्स अट्रैक्शन हो चाहे वो हो रिपल्शन हो, तो कोई ना कोई फोर्स अपीयर हो एक्सपीरियंस होगी अगर हम उसको किसी और मैटर और सब्सटेंस के पास रख देंगे. तो दिस इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रिक चार्ज वी कैन से. ठीक है. एंड चार्ज इज़ ऑफ टू टाइप्स. और एक चीज़ याद रखना, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट. ठीक है. क्लियर. ओके. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिफाइंड एज फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिफाइंड बाय एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी. वी कैन से इट लाइक दिस. एंड टाइप्स ऑफ चार्जेस, बेटा चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स. और चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज नेगेटिवली चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज एनीथिंग. You can write anything in the first, negative first, positive in the second, कोई चक्कर नहीं. Right? And a body is said to be negatively charged if it gains electrons. ठीक है. अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, लॉस इलेक्ट्रॉन, then it is said to be positively charged body. If a body always gains electron, then it is said to be a negatively charged body. फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ नेगेटिव चार्ज की. सपोज हमारे पास एक रॉड है एबोनाइट की, एंड एबोनाइट रोड, एबोनाइट एक एलॉय बेटा मटेरियल है, उसकी एक रॉड है. व्हेन इट इज रब्ड विद फर, एबोनाइट रॉड रब्ड विद फर. फर मतलब फर पता है ना आपको, फर तो पता ही सभी को यार, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक. अगर हम एबोनाइट रॉड को फर के साथ रब करेंगे तो व्हाट विल हैपन, इट एक्वायर्स, कॉमा आगे, इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज ऑलवेज. वाई? बिकॉज एबोनाइट रॉड क्या करेगी, फर से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी, तो एबोनाइट के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा हमेशा. आपने देखा होगा अभी, चलो मैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव में आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके ड्राई हेयर्स हैं, उसके ऊपर तेल मतलब ऑयल नहीं लगा हुआ, ठीक है, आपने ऑयलिंग नहीं की हुई, आप अगर उसमें ना कॉम्ब ड्राई हेयर्स में ऐसे रब करते रहो, तो कुछ देर के बाद व्हाट विल यू फील, यू विल फील दैट योर हेयर्स आर गोइंग टू अट्रैक्ट विद द कॉम्ब. या रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, आपके हेयर्स कॉम्ब के साथ अट्रैक्ट या रिपेल होने शुरू हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि जब हम उन दोनों को एक दूसरे के साथ रब कर रहे थे ना, दे विल बिकम चार्ज. या तो हेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर हेयर के ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव तो कॉम्ब के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, या वाइस वर्सा. अगर हेयर्स पे नेगेटिव आएगा तो कॉम्ब पे आएगा पॉजिटिव. ये हमेशा ऐसे ही होता है. अगर दो चीज़ों को आप आपस में रब करोगे, ठीक है ना, तो एक के ऊपर चार्ज ऑपोजिट, दूसरा पॉजिटिव आएगा सपोज, दूसरे के ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव. पर चार्ज इज ऑलवेज इक्वल. Suppose if I am rubbing the two hands, suppose leave this example. Suppose अगर मैंने एबोनाइट रॉड को, यही एग्जांपल लेते हैं, आपको आसानी होगी समझने में. अगर हम एबोनाइट रॉड को रब कर रहे हैं फर के साथ, तो अगर एबोनाइट ने अब 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए फर से, तो एबोनाइट के ऊपर चार्ज क्या आएगा, -5. फर के ऊपर चार्ज क्या आएगा, +5. बेटा चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होगा. व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड, वैल्यू 5, बट जो साइन है वो क्या होगा, ऑपोजिट. एक के ऊपर नेगेटिव, एक के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव. तो ये हमेशा देखा गया है, ये आपने जैसे एग्जांपल याद कर लो, ये हमेशा फाइंड किया गया है कि अगर एबोनाइट रॉड को हम फर के साथ रब करेंगे तो एबोनाइट रॉड ऑलवेज एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड द इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज विल बी एक्वायर्ड बाय फर. ठीक है. अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें, अगर मैं किसी ग्लास की रॉड हमें ईजिली मिल जाएगी केमिस्ट्री लैब में, अगर ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ, क्लॉथ के साथ मैं रब करूँगा तो क्या होगा, ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एन नहीं आएगा,
अ ग्लास रॉड, व्हेन लिख लो, व्हेन, यहाँ पे भी व्हेन अ ग्लास रॉड, यहाँ पे मैं इनको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, then what will happen? It will acquire पॉजिटिव चार्ज। तो ग्लास रॉड के ऊपर बेटा कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। एबोनेट के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा। पर एबोनेट को रब करना है फर के साथ, ग्लास रॉड को रब करना है हमने सिल्क क्लॉथ के साथ। तो ये ऐसे चार्ज आता है बेटा, तो ऐसे ही होता है, ये याद रखना प्लीज़, ठीक है। एंड चार्ज हमेशा दो तरह का होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्यों चार्ज आता क्यों है? इलेक्ट्रॉन्स कैसे लूज और गेन होते हैं? कई बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा शायद, आई थिंक। तो आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिफिकेशन, और इसको इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिफिकेशन। तो अभी हम करेंगे द मैकेनिज्म और थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन और चार्जिंग ऑफ सब्सटेंस। थ्योरी ऑफ चार्जिंग ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिफिकेशन और थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। तो ये कैसे होगा? तो मैं आपको जस्ट थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, समझना भी। हमें पता है कि यह सब्सटेंस ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ एटम्स, एक सब्सटेंस हमेशा एटम से बना होता है, एंड ईच एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑलवेज, राइट। दैट इज नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन एटम इज ऑलवेज जीरो, पता है ना, क्योंकि एक एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए होता है बिकॉज उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं। और हमें पता है ये भी कि एटम में प्रोटॉन भी होते हैं एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज वाई इट कैरीज न्यूट्रल जीरो चार्ज। नाउ द पॉजिटिव चार्जेस आर टाइटली बाउंड द न्यूक्लियस, पता है हमें, जो प्रोटॉन्स है वो किस में है? न्यूक्लियस में है। लिख रहा हूँ मैं, अभी ध्यान से सुनना। एक सब्सटेंस है, वो किससे बना हुआ है? एटम से। एटम्स क्या हैं? न्यूट्रल। वाई? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, ठीक है। एंड एज जैसे हो गया एक बात, अभी सेकंड बात कर रहे हैं अभी हम। हमें पता है कि प्रोटॉन्स दैट कैरी पॉजिटिव चार्ज वी कैन से, ठीक है, आर टाइटली बाउंड बाय न्यूक्लियस, सॉरी इन न्यूक्लियस, टाइटली बाउंड इन द न्यूक्लियस। पता है ना कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की तो बात हो ही नहीं वैसे, चलो छोड़ो, क्योंकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर चार्ज जीरो होता है, तो चार्ज के बेस में चार्ज इस टॉपिक में न्यूट्रॉन्स की बात करनी ही नहीं है। पता है हमें प्रोटॉन्स हमेशा न्यूक्लियस में होते हैं, है ना, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड दे आर फ्री टू मूव, है ना। एंड इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नेगेटिव चार्ज, वी कैन ऑल्सो से दैट नेगेटिव चार्ज is always revolve around nucleus in different orbits and they are free to move, है ना। and the electrons in the outermost shell are loosely bound, है ना, and the electrons in the outermost shell are known as valence electrons। पता है हमें जो outermost shell में इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा उसको बोलते हैं valence electrons। मैं ई नेगेटिव डाल रहा हूँ सिंबल इलेक्ट्रॉन का, प्लीज़ इसको माइंड मत करना, ऐसे लिखना मत आप, ऐसे आपने पूरा लिखना है इलेक्ट्रॉन्स। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हमें पता है दे आर ऑलवेज लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, ठीक है, एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर ऑर्बिट्स, राइट। एंड नाउ व्हेन अ सब्सटेंस इज रब्ड विथ, जब हम सब्सटेंस को रब करेंगे विद अनदर मटेरियल तो क्या होगा? ये जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा आर रिमूव्ड फ्रॉम देयर एटम्स, तो ये अपने एटम से दूर बाहर चले जाएंगे,
अभी अभी एक क्वेश्चन आएगा मन में कि सर अगर हम एबोनाइट रॉड को फर के साथ रब कर रहे हैं तो दोनों के इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे? नहीं, दोनों के नहीं जाएंगे बेटा। दोनों के इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि दोनों को एनर्जी मिल रही है, क्योंकि जब हम रब करते हैं तो हीट जनरेट होती है, टेम्परेचर राइज होता है तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड हाई होगी, एनर्जी भी क्या होगी, हाई हो जाएगी। तो फर के इलेक्ट्रॉन की कोशिश करेंगे मैं बाहर जाऊँ, एबोनाइट रॉड के इलेक्ट्रॉन की कोशिश करेंगे कि मैं बाहर जाऊँ। बट दोनों में से जिसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लूजली बाउंड होंगे, फर के या एबोनाइट के, वो पहले लूज हो जाएंगे, वो बाहर चले जाएंगे ज़्यादा जल्दी। और जो इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर चले गए उस सब्सटेंस के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और दूसरे सब्सटेंस को ऑटोमेटिकली आप कहने फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, क्योंकि एक एटम ने सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए और दूसरे सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन्स फोर्सफुली लेने पड़ेंगे, चाहे टेम्परेचर हाई ही है तब भी। तो जिसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए उसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ क्यों किए? क्योंकि उसके पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, वो ज़्यादा लूजली बाउंड थे एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड सब्सटेंस। ठीक है, तो उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा, उसके ऊपर दूसरे ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यही एबोनाइट और फर के केस में होता है। फर के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, और वो ईजिली लूज़ कर देता है वो जब उनको रब करते हैं हम उसको एबोनाइट रॉड के साथ। तो एबोनाइट रॉड को वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ते हैं, वो गेन करती है तो उसके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव, और फर के जो ऊपर है वो चार्ज क्या आता है बेटा, पॉजिटिव आता है। ठीक है, क्लियर? ओके, राइट। सो आफ्टर लूजिंग the atom of a substance that is losing electrons do not have equal number of electrons and protons, and the atoms of a substance that is gaining the electrons also not having do not have equal number of electrons and protons. ठीक है, and in the substance in which the protons are more in number as compared to the electrons will carry positive charge, and the substance in which the electrons are more in number as compared to protons, they will carry negative charge. ठीक है, so this is how it will happen. This is the theory of charging a substance or electrification we can say. ठीक है, ओके। सो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। पूरी बॉडी को, पहले तो हम चार्ज की बात कर रहे थे, पूरी बॉडी को बोलेंगे, सब्सटेंस को बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एंड जो बॉडी या सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसको बोलेंगे हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, क्लियर? एंड द चार्ज एसोसिएटेड विद प्रोटॉन्स इट इज़ नोन एज पॉजिटिव चार्ज, चार्ज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इट इज़ नोन एज नेगेटिव चार्ज। ये याद रखना, अगर आपको पूछेगी व्हाट इज़ पॉजिटिव चार्ज, व्हाट इज़ पॉजिटिव चार्ज, तो आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे द चार्ज associated with protons is positive charge, and the charge associated with electrons is नेगेटिव चार्ज। मैं प्लस पाके VE डाल रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्ज। एंड वन थिंग मोर, this is I think you all have understood, but one thing more, how to denote a charge. The charge is denoted by, or we can say the electric charge is, कोशिश करना कि इस चैप्टर में आप ओनली चार्ज वर्ड यूज़ मत करो, कि आप इलेक्ट्रिक चार्ज वर्ड यूज़ करो। वाई? बिकॉज चैप्टर नेम इज़ इलेक्ट्रिसिटी, सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज मच बेटर। चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय Q और कैपिटल Q. Capital Q is the total charge on the body. Small q is the charge on a small part of the body. Suppose ये मार्कर है, इस मार्कर के कैप पे ऊपर चार्ज है पर पूरी बॉडी पे नहीं है, तो जो कैप के ऊपर चार्ज होगा उसको लेंगे हम स्मॉल क्यू, पर जो पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा उसको क्या लेंगे हम, कैपिटल क्यू लेंगे। ठीक है, सपोज पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज है 100 और कैप के ऊपर चार्ज है 10, तो 10 है वो स्मॉल क्यू है, जो 100 है वो क्या है, कैपिटल क्यू है। ठीक है, तो ये बोलते हैं इसको। एंड नाउ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज,
The SI unit of electric charge is coulombs. COULOMB, and it is denoted by capital C. Capital C और letter C is coulomb. हमने 9th में किया था that the charge on electron and proton, है ना, किया था ना, पता है हमें the charge on, and you have to learn it also, इलेक्ट्रॉन, आधे बच्चों को तो शायद याद भी ना हो, इज ऑलवेज इक्वल टू -1.6 10⁻⁻19 C. C is for coulombs, and charge on protons, that is always equal to plus 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs. हमें पता है कि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमेशा सेम होता है, बट दे आर ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर. प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज and electrons carry negative charge of the same magnitude as that of protons. But magnitude means numerical value, right? Now one thing more, ये हो गया, ठीक है. डू यू नो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? चलो चार्ज तो हो गया, पता है आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, व्हेन वेरी वेरी लेस, ऑलवेज नेग्लिजिबल होता है वो, 10⁻31 kg. 9.1 into 10⁻31 kg is the mass of electron. And mass of proton is also known as unit mass, that is always equal to 1.67 into 10⁻27 kg, that is unit mass. ठीक है. And this charge, both these charges are known as unit charge. In short we can say charge on proton and electron is unit charge, standard माना हुआ है हमने ये. And mass of proton is 1.67 10⁻27 kg is unit mass, and mass of electron is always negligible, बहुत कम होता है as compared to proton. ठीक है. So these are some general terms that you have to remember, और ये आपने किया भी होगा 9th में, तो ये I think easy था. Now next one is we are having properties of electric charge. अभी वही टॉपिक चल रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बता दी, क्या कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल. अगर पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आ गया तो रिपेल करेगा, बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, comma, while unlike charges attract each other. This is a first property of electric charge. Okay, so second one is, it means इसको डायग्रामेटिकली शो करना है. कैसे करेंगे कि अगर हम पॉजिटिव के पास पॉजिटिव ले आएँ तो दोनों एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे. बट हम नेगेटिव के पास पॉजिटिव ले आएँ तो एक दूसरे के पास दोनों क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे, राइट. अगर नेगेटिव के साथ नेगेटिव ले आएँ तो भी क्या होगी, रिपल्शन होगी, पर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव ले आएँ तो क्या होगी, मुझे अट्रैक्शन होगी. क्लियर? दिस इज नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज electric charges are added algebraically. याद रखना प्लीज, the electric charges
are added algebraically. It means अगर सपोज मेरे पास आई हैव दिस मार्कर, तो इसके कैप के ऊपर सपोज 10 कूलम चार्ज है, इसके टिप पे ऊपर 10 कूलम चार्ज है, इसकी नीचे वाली जो बॉडी है इसके ऊपर 10 कूलम चार्ज है। तो ये मैंने कैप लगा दिया इसमें, तो मैंने टोटल चार्ज अगर फाइंड करना है तो कितना होगा, 10 + 10 + 10 कितना हो गया, 30 कूलम चार्ज होगा सारे मार्कर के ऊपर। तो एक बॉडी के अलग अलग पार्ट के ऊपर जितना भी चार्ज हो, अगर हमने पूरा चार्ज फाइंड करना हो कि उस बॉडी पे कितना है, तो सारे चार्जेस को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो वो टोटल चार्ज ऑन द बॉडी बन जाएगा। क्लियर? ओके, याद रखना प्लीज़। थर्ड, और एक चीज़ और एग्जांपल दे दूँ आपको, ऐसा नहीं होता कि बच्चे के पास सोचते हैं कि चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही होगा, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज कैप के ऊपर चार्ज है -10 कूलम और बॉडी के ऊपर, सारी बॉडी के ऊपर चार्ज है +30 कूलम, तो टोटल चार्ज फाइंड करना है, +30 - 10 कितना आएगा आंसर, +20 कूलम आएगा। दैट इज ऑल्सो द नेट चार्ज ऑन द बॉडी बिकॉज दे आर एडेड algebraically always. And next one is electric charge is always conserved. Charge is conserved. इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट द एल्जेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन अ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, चलो ये आपको ज़्यादा डिटेल नहीं कराऊंगा, सिंपल लेवल से याद रखना, इलेक्ट्रिक चार्ज के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज हम क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज तो है ही हमारे पास। आप बोलोगे सर कि जब हमने एबोनाइट रॉड को फर के साथ रब किया तो एबोनाइट के ऊपर चार्ज नेगेटिव आ गया, हमने क्रिएट किया, बट हमने क्रिएट नहीं किया, चार्ज तो पहले ही था, किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, प्रोटॉन्स के ऊपर। वो तो जस्ट हमने रब हमने जब किया तो क्या हो गया, उससे इलेक्ट्रॉन्स जो लूजली बाउंड थे उनको एनर्जी मिल गई, वो फर से निकल के एबोनाइट के ऊपर चले गए, तो एबोनाइट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इंक्रीज हो गए, इसलिए उसके ऊपर टोटल चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। हमने चार्ज क्रिएट नहीं किया, पर तो फर के ऊपर उतना ही क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो टोटल चार्ज पहले कितना था, 0, क्योंकि फर भी न्यूट्रल थी, एबोनाइट रॉड भी न्यूट्रल थी। पर रब करने के बाद टोटल चार्ज दोनों बॉडीज़ पे कितना है, अगर सपोज एबोनाइट के ऊपर -10 आ गया, फर के ऊपर कितना है, +10 आएगा, दोनों को प्लस करोगे कितना आंसर आएगा, 0, फिर भी क्या है, न्यूट्रल है। तो रबिंग के बाद, रबिंग से पहले चार्ज हमेशा 0 ही रहेगा, टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं, नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज कंजर्व्ड रहेगा, 0 रहेगा। चार्ज को क्योंकि बनाया नहीं जा सकता, चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, दैट इज़ वाई दिस इज द केस विद चार्ज। एंड द fourth property that is very much important and new to you all also is electric charge is quantized. बेटा ये वर्ड है क्वांटाइज्ड, ये क्वांटा से आया है या क्वांटम फिजिक्स से आया है, क्वांटम फिजिक्स आया है वो आपको +1 में या बाद में भी बता दूंगा, जब एनटीएससी करेंगे तब बता दूंगा या तो ये याद रखना प्लीज़, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज। क्यों, क्या इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी बॉडी के ऊपर जो है या किसी बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफ़र होता है कभी भी, तो वो कॉन्टीन्यूसली ट्रांसफ़र नहीं होता। जब वो ट्रांसफ़र होगा या उस बॉडी के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो भी कॉन्टीन्यूस नहीं है, वो डिस्क्रीट फॉर्म्स में है, डिस्क्रीट पैकेट्स में है, छोटे छोटे पैकेट्स हैं, सभी को प्लस किया हुआ है, पैकेट्स के ऊपर चार्ज काउंट किया है, टोटल चार्ज प्लस कर लिया तो पूरी बॉडी के ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। सो वी कैन से दैट a substance or a body has electric charge which exists in discrete packets, or you can say that the total charge acquired by the body is an integral multiple of magnitude of charge on single electron, and this principle is known as quantization of charge. पता ही है हमें, सपोज इसके ऊपर -10 कूलम चार्ज है, -10 कूलम, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर या प्रोटॉन के ऊपर उसको बोलते हैं हम 1 कूलम,
राइट, दैट इज यूनिट चार्ज बोलते हैं उसको हम, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर 10 कूलम चार्ज है तो उसका मतलब 10 कूलम पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज नहीं है, -10 कूलम। तो एक एक इलेक्ट्रॉन जितने भी इसमें एक्स्ट्रा हैं उनके ऊपर जो चार्ज है उन सभी को प्लस किया हुआ है, तब जाके ये बना है 10 कूलम चार्ज, ठीक है। और 10 कूलम चार्ज को जो टोटल चार्ज बना वो सारे इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को प्लस करके बना हुआ है। तो वी कैन से दैट चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज दैट द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी दैट इज क्यू, अगर पूरा चार्ज है बॉडी के ऊपर या कैपिटल क्यू ले सकते हो, तो वो क्या है, दो n इंटू ई है। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड e इज द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर सपोज इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसका टोटल चार्ज कितना बनेगा पूरी बॉडी का, पूरे का। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 10 इसमें, तो क्या बनेगा, तो 10 इंटू कितना आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 10, तो क्या आंसर आएगा, वो टोटल चार्ज ऑन द बॉडी आ जाएगा। मतलब चार्ज कभी भी कॉन्टीन्यूस फॉर्म में नहीं होता। अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर भी हो रहा है ना, तो कॉन्टीन्यूसली ट्रांसफर नहीं होगा, हमेशा पैकेट्स की फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होगा। एक इलेक्ट्रॉन गया, 2 गया, 3 गए, 4 गए, 5 गए, 6 गए, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पैकेट्स में जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन, जब मान लो 100 इलेक्ट्रॉन है, वो 100 का 100 एक बार में नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे, 10 10 10 10 20 30 ऐसे करके जाएंगे, मतलब पैकेट्स की फॉर्म में जाएंगे हमेशा। और एक पैकेट का चार्ज जो है वो n इंटू ई है, मतलब इट इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो यू विल आंसर इट लाइक दिस। आई एम गिविंग अ हेडिंग दैट प्रिंसिपल ऑफ, ये क्वेश्चन आता है पेपर में कई बार कंफ्यूज करने के लिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो यू विल आंसर इट लाइक दिस, दैट the total charge acquired by a body is an integral multiple of magnitude of charge on a single electron, that is q, that is total charge, is always equal to ne, where e is charge on electron, that is -1, that is -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, and n is number of electrons. So this is कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर पॉजिटिव में हुआ तब भी यही आएगा, पर ये यहाँ पे 1.6 रहने दो, माइनस रहने दो, सिर्फ 1.6 लिख लो, ठीक है। दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव सेम क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज क्या होता है, हमेशा सेम होता है, दैट इज वाई। एंड दिस इज अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अंडरस्टूड। कभी भी चार्ज कंप्लीटली पूरी बॉडी पे नहीं होता, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स पे होता है, तो उसका सम करके टोटल चार्ज आ जाएगा। अगर आपको एक न्यूमेरिकल करवाऊँ आपको इसके ऊपर बेस में, तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। सपोज हमें फाइंड करना है कि एक बॉडी है, अ बॉडी हैज़ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, एक बॉडी पे चार्ज है 1 कूलम, फाइंड the number of electrons on the body, find the number of electrons present on body। हमने बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं कितने हैं, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है Q इज इक्वल टू NE, ये आंसर है, ठीक है। Q हमें दिया हुआ है टोटल चार्ज कितना है बॉडी के ऊपर 1 कूलम, तो 1 इज इक्वल टू N। E हमें पता है कितना होता है, यहाँ से पता है हमें कितना होता है 1.6 into 10⁻⁻19, so we can say that n यहाँ रह जाएगा, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, that n is equal to 1/1.6
into 10 raised power minus 19, क्लियर, एंड 1 इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.625 इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी प्लस 19 इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर किसी बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज है, सिर्फ 1 कूलम चार्ज, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स पता कितने हैं? 0.625 10 रेज्ड पावर 9 और 6.25 10 रेज्ड पावर 18, और इट कैन बी, इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं हम 6.25 10 रेज्ड पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें, क्योंकि ये पॉइंट इधर तक चला जाएगा तो पावर में एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इतना इलेक्ट्रॉन होंगे तो जाके एक कूलम बनेगा, ये याद रखना, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दैट द चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। आई थिंक ये न्यूमेरिकल सफिशिएंट है आपको समझाने के लिए कि एक बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है तो वो एक कूलम नहीं है, वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज है वो मिला के एक कूलम बना है। तो वो कितने, देखो 10 रेज़्ड पावर 18 है, अनकाउंटेबल इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सो ये याद रखना, इसलिए चार्ज क्या हुआ है, हमेशा क्वांटाइज्ड है, एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये याद रखना प्लीज। फोर्थ प्रॉपर्टी थी दैट द चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड ऑन अ बॉडी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही बेटा, इसके बाद शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वो डिफरेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है, कूलम क्या है, पोटेंशियल क्या है, सब कुछ करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ इतना कर लेना आज के लिए, ये समझ लेना। अगर कोई डाउट हुआ तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी, मेरे को मैसेज कर देना, कॉल कर लेना, कभी भी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। ओके, सो ओके, बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल फॉर द डे।